Now we move on to the last part of the conference, the valedictory session of the conference. We have a highly distinguished guest to deliver the valedictory address for this conference. Dr. Anuradha Singh is going to be the guest. Dr. Anuradha Singh, ma'am, is a professor at the Department of History, Faculty of Social Sciences at the Banaras Hindu University. She has recently conducted a conference on cultural Kashi. Professor Anuradha Singh has many publications to her credit from history point of view. Particularly, she is an expert in the cultural understanding of the holy city of Benares. She has kindly agreed to be our chief guest for the valedictory session. After the valedictory address by Dr. Anuradha Singh, will be her research project is Kashi as a living center of Indian cultural heritage and its present relevance. She is a member of many professional bodies like Indian Association for Studies in Population, and she is a Bharatiya Itihas Sankalana Samiti Yojana, New Delhi. She is a member of that, and she was the student advisor for Faculty of Social Sciences, Banaras Hindu University. She is the ex-convener, Gender Sensitization Cell, Faculty of Social Sciences, Banaras Hindu University. She has many contributions like regional history, tribal history, and many other highly nuanced areas of history. She has 4 published books and 52 published papers and 66 paper presentations in various conferences and seminars. Such a distinguished scholar, Dr. Anuradha Singh, will now deliver the valedictory address, and after that, with vote of thanks, the conference will come to an end. Over to Dr. Anuradha Singh, ma'am. We request you to deliver the valedictory address. Thank you, sir. Thank you to Indica Group for inviting me to recite the valedictory session of the conference on the subject Hinduism and environmentalism. I am highly delighted that Indica Group gave me such opportunity to speak as a chief speaker in this important conference. Sir, I would like to present this topic कि भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण. ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सेटिंग इधर कर दो थोड़ा. ठीक है सर? जी जी. हाँ, ओके. तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर, तो इस बात पे, इस संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहूंगी कि पर्यावरण बड़ा ही एक व्यापक शब्द है. वस्तुतः इसका तात्पर्य उस समूची भौतिक और जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं. अतः पर्यावरण का अर्थ जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाले समस्त भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियों का योग है. हम इस रूप में इसको देख सकते हैं. हमारे चारों ओर
जो भी प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, वे सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। इसे जीव मंडल भी हम कह सकते हैं, जो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवन युक्त भागों का योग होता है, जो वास्तव में पर्यावरण को हम एक आवास के रूप में देख सकते हैं, जिसमें हम सब लोग रहते हैं। मानव और प्रकृति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मानव का जो जीवन आश्रय ही प्राकृतिक व्यवस्था है। इस संदर्भ में हम आप लोगों के सम्मुख ये रखना चाहते हैं कि कैसे वेदों में पर्यावरण, एक्चुअली मैं इतिहास डिसिप्लिन की हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो आई वांट टू गिव कुछ सम एग्जांपल फ्रॉम वेदास, लाइक पर्यावरण का स्वच्छ एवं संतुलित होना मानव सभ्यता के लिए आवश्यक है। पाश्चात्य सभ्यता को यह तथ्य 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध में मिली, जबकि भारतीय मनुष्यों ने इसे वैदिक काल में ही अनुभूत कर लिया था। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष, इन्हीं पंच तत्वों से ही हमारा शरीर निर्मित है। ऋग्वेद में इस बात का जिक्र मिलता है, पंचस्वंतु पुरुषः आविवे शतान्यतः पुरुषे अर्पितानि। उन्हें इस तथ्य का मान था कि यदि इन पंच तत्वों में से एक भी दूषित हो गया तो उसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर पड़ना अवश्यंभावी है। इसी तरीके से वो ऋग्वेद में लिखा जाता है कि दौ शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषध्य शांति। ऋग्वेद के मतलब सभी के शांति की बात की गई है हमारे वेदों में। खासकर इस तरीके का जो रेफरेंस आता है वह ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधियों के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। उसमें मिलता है कि औषधे प्रतिमोदध्वयम् पुष्पवती प्रसुवरी ही अश्वायु सजित्वरी रविदुरः पारयसी रावः। अर्थात पुष्पों वाली, फलों वाली, अश्वों के समान रोग पर विजय पाने वाली, रोगी को निरोग करने वाली औषधियां रोगी के ऊपर प्रभावशाली होती है। इसी प्रकार के संस्कृत साहित्य में भी पर्यावरण के महत्व एवं जागरूकता की बातें बहुत सारी जगह हमको उसका रेफरेंस मिलता है। जैसे सेवितव्यो महावृक्षम फलच्छाया समिचिता यदि देवात्म फलम स्थाच छाया केन निर्वयते। इसमें हमारी संस्कृति किसी भी परिस्थिति में पेड़ का कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करती। इस हद तक यह बात चली गई कि अत्यावश्यक परिस्थितियों में पेड़ या पौधों का विनाश हो तो उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। वृक्षों की तुलना सत्पुरुषों से की गई। पेड़ खुद धूप में ठहर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, फल खुद न खाकर दूसरों को समर्पित करते हैं। वृक्ष पश्येतान महाभागानम परावे कांति जीवितानाम वात वर्ष पहिमान सहंतरे वार्यंती न। वृक्ष इतने महान होते हैं कि परोपकार के लिए ही जीते हैं। ये आंधी, वर्षा और शीत को स्वयं सहन करते हैं। इनका जन्म बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण सभी प्राणी जीवित हैं। जिस प्रकार किसी सज्जन के सामने से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाते, उसी प्रकार इन वृक्षों के पास से भी कोई खाली हाथ
नहीं चाहता। इस प्रकार का रेफरेंस भगवत महापुराण में मिलता है। इसी तरीके से मत्स्य पुराण में लिखा गया कि 10 कुपाओं के बराबर 10 कूप समावापी 10 वापी समोहत हद्रह 10 हद क्षमः पुत्रो 10 पुत्रो समुद्रम। 10 कुआओं के बराबर एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। इस प्रकार का इंपॉर्टेंस वृक्ष को जो पुत्रों से भी श्रेष्ठ माना गया उसकी बात मत्स्य पुराण में की जाती है। इसी प्रकार की रेफरेंस मनुस्मृति में जिसमें लिखा कि जल में मलमूत्र, कूड़ा, रक्त और विष आदि नहीं बहाना चाहिए, जिससे पानी विषाक्त हो जाता है और पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव दिखाई देता है। इससे मनुष्य तथा अन्य जीवों के शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है। इस तरीके की बातें मनुस्मृति में लिखी गई है। इसी तरीके के रेफरेंस महाभारत में मिलता है कि पुष्पिता फलवनश्च तर्पयन्ति मानवान् वृक्षतम पुत्रवद वृक्षा इस तरह यंती परत्र च। फलों और फूलों वाले वृक्ष मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वृक्ष देने वाले अर्थात समाज हित में वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति का परलोक में कारण वृक्ष ही करते हैं। इसलिए श्रेयस यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो तालाब के आसपास अच्छे पेड़ लगाए और उनका पुत्र की भांति पालन करे। वास्तव में धर्मानुसार वृक्षों को पुत्र ही माना गया। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो ईशो उपनिषद में मिलता है, जहां लिखा जिसका रेफरेंस इस प्रकार से आता है कि ईश्वर ने उपहार स्वरूप प्रकृति की सभी वस्तुओं उपभोग के लिए सभी मानवों को प्रदान किया है। सभी मानवों को चाहिए कि प्रकृति की वस्तुओं का उपभोग आवश्यकता अनुसार करें और लालच में आकर प्रकृति का दोहन ना करें। यहाँ पे हम आपको एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि जब इंसान ने ये देखा कि कैसे प्रकृति का किस तरीके से प्रकृति अपने अकॉर्डिंग आती है और पूरी मानव सृष्टि का समय समय पर विध्वंस करके चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में इंसान मानव प्रकृति के साथ डायलॉग करने के लिए वह मानव के प्रकृति के विभिन्न रूपों का मानवीकरण करती है। और अभी हमने जैसा कि ईशोपनिषद में बताया कि अविवेक पूर्ण मानव का जो कहा गया कि किस प्रकार से प्रकृति आप सभी के लिए उपस्थित है, लेकिन हमको उसका जो यूज है वह बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, जिसका हमारे सामने इतिहास में तमाम ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जिस तरीके से हम जिसकी गिनती हम इंडस वैली के रूप में कर सकते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता, बाद में वैदिक पीरियड, कि जब इंसान प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन किया है, उसे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कभी भूकंप के रूप में, तो कभी भूस्खलन के रूप में, तो कभी बाढ़ के रूप में, तमाम इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं लोगों को। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मनुष्य जब संसार में आता है तो वह पूर्णतः मानवीय अवस्था मतलब प्राकृतिक अवस्था में होता है। उसे किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं धारण करता है, किया रहता है। उसे अभिभावक वस्त्र पहना देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति बड़े होने पर प्रकृति के वस्त्रों को हटाने पर जुट जाता है। और ऐसा कई बार अज्ञानतावश भी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को प्राकृतिक उपादानों की उपयोगिता का
अनुमान है, उनसे भी इस प्रकार की गलती होती रहती है। प्रकृति को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने का जिम्मा यदि किसी को जाता है तो वह है अंधाधुंध तथा अनियोजित विकास की हो। प्राचीन भारत में मानव का सर्वप्रमुख ध्येय प्राकृतिक व्यवस्था के साथ तारतम्यता रखना था। मनुष्य को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति करती है। हमारे ग्रंथों में उसे विभिन्न रूपों में माँ यानी पूज्य कहा गया। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ा गया ताकि परंपरा के नाम पर ही सही पर्यावरण का संरक्षण होता रहे। भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं में वन एवं वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन संस्कृति को अरण्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वेदों व धार्मिक ग्रंथों में वनस्पति चिंता की अपनी विशिष्टता है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में हरे भरे वृक्षों तथा उनके राक्षसों को यजुर्वेद के रुद्राध्याय में हरे भरे वृक्षों और उनकी रक्षा कर रहे लोगों को विशेष आदर सत्कार देने की बात कही गई। ईश्वर की सृष्टि में सर्वोत्तम रचना मानव है, क्योंकि मानव ही स्नेह, दया, त्याग, उदारता, संयम आदि गुण उसमें ही विद्यमान है। नीति शास्त्रीय विचारक मानव के इन्हीं गुणों को मानव मूल्य कहते हैं। इसके साथ ही मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति ने विभिन्न संसाधनों यथा वायु, जल, भूमि, खनिज, वन आदि को उपलब्ध कराया। इन सभी की सम्मिलित व्यवस्था पर्यावरण है। शुद्ध पर्यावरण मानव के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत पक्ष को प्रभावित कर सकारात्मक परिणाम की ओर अग्रसर करता है। प्राचीन समय में असीमित धरती तथा असीमित प्राकृतिक संसाधन पूर्ण प्रकृति के साथ मानव संतुलन बनाए हुए शांति से जीवन यापन करता था। मानव की आवश्यकताएं कम थी और उसे वह प्रकृति से सहजता से प्राप्त कर लेता था, परंतु धीरे धीरे बदलते हुए समय में मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर प्रगति की और अधिक अति महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रकृति का दोहन करना आरंभ कर दिया। मानव के इस क्रांतिकारी विकास का सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता रहा। इस संदर्भ में भारतीय मनीषियों ने वैज्ञानिक दृष्टि से समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए मानव के प्रत्येक कार्य में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि मानव समुदाय धर्म पर अधिक विश्वास एवं श्रद्धा रखते हुए प्रत्येक कार्य सोच समझकर करता है। मानव जीवन में धर्म की महती भूमिका मानते हुए मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों में मानव के लिए कुछ सामान्य धर्म बताए गए हैं, जिनके आचरण से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और वह सर्व कल्याण की भावना से अपना सम्यक विकास करता है। मनुस्मृति के अनुसार संतोष, दया, क्षमा, अस्तेय, अशौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध, इन 10 मानव धर्मों का आचरण मनुष्य को सदैव करना चाहिए। इसी में सृष्टि का सर्वविध कल्याण निहित है।
इस प्रकार की बातें मनु स्मृति में कही गई और इसे धर्म सम्मत मान करके इन मनुष्य के द्वारा इसका अनुसरण किया जाए और पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, इसका भी उद्देश्य हम इस रूप में देख सकते हैं। प्रतीक प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षों, वनस्पतियों, नदियों, सूर्य, चंद्रमा आदि को देवतुल्य मानकर इसकी पूजा का विधान बताया गया और कहीं न कहीं से हम इस रूप में इसको समझ सकते हैं कि इन प्रकृति के विभिन्न स्वरूप को मानवीय संवाद के लिए, एक डायलॉग के लिए इस प्रकार का उनका मानवीकरण किया गया समय समय के साथ और इसीलिए वनों, वृक्षों, वनस्पति आदि को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए पौराणिक आचार्यों ने वृक्षारोपण को सुख समृद्धि एवं दुख निवृत्ति से जोड़ते हुए मनुष्यों को वृक्षारोपण के लिए उत्प्रेरित किया। मानव मूल्य के संदर्भ में मनुष्यों के जीवन में दान का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ वृक्ष दान करना चाहिए। वराह पुराण में वृक्ष दान को विशिष्ट दान माना गया क्योंकि संसार में भूमि दान और गोदान से भी ज्यादा पुण्य फल वृक्ष दान से प्राप्त होता है। इसी प्रकार बृहद पुराण में भगवान विष्णु ने तुलसी वृक्ष को अति महत्वपूर्ण मानते हुए संकीर्तन किया है तथा दैनिक पूजन में उसकी अनिवार्यता बताई है। उसमें कहा गया है कि नाना प्रकार के पुष्पों से विभूषित सभी नैवेद्य और तुलसी का एक पत्र दोनों ही एक कोटि महत्व के होते हैं, अतः सभी नैवेद्यों की समानता एक तुलसी पत्र में समाहित है। इतनी इंपॉर्टेंस तुलसी को दी गई। पर्यावरण के शुद्धिकरण में यज्ञ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मानव को नित्य हवन पूजन द्वारा वातावरण शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। इसे यज्ञ में डाली जाने वाली घृत, समिधाएं, मिष्ट, कस्तूरी, सुगंधित आदि पदार्थ भूमि, जल, वायु आदि के विभिन्न व्याधियों को दूर करती हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि सभी चेतन प्राणियों का पालन पोषण यज्ञ द्वारा ही संपादित होता है। छंदोग्य उपनिषद में भी यज्ञ को पर्यावरण शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय मानते हुए नित्य हवन यज्ञ का निर्देश दिया गया। प्राचीन समय से ही प्रकृति से मानव का अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। इसी कारण मनुष्य को धरती पुत्र माना गया। अथर्ववेद में धरती को माता तथा पृथ्वी को पिता कहा गया। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि किस प्रकार से पौराणिक आचार्यों ने वृक्षारोपण को सुख समृद्धि एवं दुख निवृत्ति से जोड़ते हुए मनुष्यों को वृक्षारोपण के लिए उत्प्रेरित किया है और मानव मूल्य के संदर्भ में मनुष्य के जीवन में दान का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि वृक्ष का जो दान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। वराह पुराण में भी इसी प्रकार के विशिष्ट दान में वृक्ष दान की बात की गई क्योंकि संसार में भूमि दान और गोदान से भी ज्यादा पुण्य फल वृक्ष दान को मिलता है। अतः मनुष्य को जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह वृक्ष दान करे। क्योंकि संसार में देखिए भूमि दान गोदान से भी ज्यादा जब हम इंपॉर्टेंस वृक्ष दान को देते हैं, इसके पीछे जो कारण है और तो अभी हमने इस बात पे जोर दिया कि बृहद पुराण में भगवान विष्णु ने तुलसी की इंपॉर्टेंस को बताया है कि अनेकों प्रकार के जो नैवेद्य है उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुलसी का एक पत्र है
वो उस कोटि में उसको मानते हैं। अतः सभी नैवेद्यों से भी इम्पोर्टेंट उन्होंने तुलसी पत्र को समाहित किया। तो कहीं ना कहीं से हम उस इम्पोर्टेंस को उस संदर्भ में देख सकते हैं कि पर्यावरण के शुद्धिकरण में यज्ञ का क्या स्थान है। मानव को नित्य हवन पूजन द्वारा वातावरण शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। इस यज्ञ में डाली जाने वाली जो तमाम वस्तुओं के बारे में हम चर्चा किए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है पर्यावरण के एक कंट्रीब्यूशन में। साथ में हमने बताया कि अथर्ववेद में धरती को माता और पृथ्वी को पिता कहा गया। यह भी इसमें धरती को माता तथा पृथ्वी को पिता मानते हुए श्रद्धा सेवा भाव से व्यवहार करने की आज्ञा है कि हम अपनी इस प्रकृति के जो विभिन्न स्वरूप है उनको किस तरीके से अपने पेरेंट्स के रूप में महत्व दें। उसने उनके प्रसन्न होने पर यानी मनुष्य को सब कल्याण सिद्ध होता है। जिस प्रकार हमारे पेरेंट्स जब प्रसन्न होते हैं तो उनके द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद होता है, जिससे इंसान सभी प्रकार के ख्यातियां प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को सब कल्याण सिद्ध हो सकता है और उनके प्रकृति के प्रसन्न होने पर। और यदि प्रकृति जो है अप्रसन्न हो तो मनुष्य को अनेकों प्रकार से विनाश का सामना करना पड़ सकता है। अतः मानव को प्रकृति के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण का भाव रखना चाहिए। साथ में हमारा ईशोपनिषद में भी त्यागपूर्ण भोग की आज्ञा दी गई है। इसी प्रकार इस पर्यावरण से भी बिना किसी लोभ के व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार की बात ईशावास्योपनिषद में दी गई। अर्थात जगत में जो कुछ भी स्थावर जंगमात्मक है उन सब में परमात्मा विद्यमान है। उन सभी का मानव को त्याग भाव से पालन करना चाहिए। प्रकृति से मात्र अपने हित और लाभ की इच्छा न करते हुए त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए। वस्तुतः पर्यावरण ही मानव जीवन का मूल आधार है और इसके लिए आवश्यक है कि मानव समष्टि कल्याण की भावना के साथ पर्यावरण से मित्रवत व्यवहार करे। यजुर्वेद में चर अचर सभी को मित्र की दृष्टि से देखने का संदेश दिया गया है। यजुर्वेद में ही एक और उदाहरण दृष्टव्य है। अतः जब पर्यावरण के प्रति मानव में मित्रता का भाव रहेगा तभी यह पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा। मानव को चाहिए कि वह अपने आसपास की प्राकृतिक संपदाओं को मित्र समझकर उसका उपयोग करे। मानव मूल्य के रूप में प्रत्येक मनुष्य में उदारता एवं कृतज्ञता का गुण होना भी अति आवश्यक है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि प्रकृति अपने हित के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग कभी नहीं करती। वह तो स्वयं मानव पर निर्भर है। वह तो स्वयं मानवों के लिए असीमित संसाधनों को उपलब्ध कराती है। ऐसी परिस्थितियों में मानव को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर सौहार्द एवं संतोष के साथ उसके साथ संतुलन बनाते हुए संरक्षण का ध्यान रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि प्रकृति में भी चेतना होती है। मानव की भांति उसमें भी सुख दुख की भावना होती है। पोषित एवं पालित अवस्था में प्रकृति भी हमारा सकारात्मक सहयोग करती है तथा उपेक्षित अवस्था में वह भी विपरीत फलदायक होती है। अतः मानव प्रकृति के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। अपनी अदम्य इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए प्रकृति को अपने समान चेतन युक्त समझकर व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे हम आपको एक चीज और भी कहना चाहेंगे कि आज इन्वायरमेंट के तमाम मॉडर्न पहलुओं पे जब हम बात करते हैं
तो इस संदर्भ में इको फेमिनिज्म की जब बात आती है या और भी तमाम मॉडर्न इन्वायरमेंटलिस्ट इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, तो वो जो बात हमारे वेदों में, हमारे संस्कृत साहित्य में, पुराणों में मिल रही है, वो बात आज तमाम पर्यावरणविद द्वारा ये बात कहा जाना कि प्रकृति को इसलिए नहीं संरक्षित करने की जरूरत है कि वो हमारे लिए लाभदायक है, बल्कि इसलिए हमें उनको संरक्षित करना है क्योंकि जिस तरह मनुष्य की खुशी के लिए मनुष्य को इस प्रकार से अपना रहना है और इन नियमों का पालन करना है, उसी प्रकार से प्रकृति को उनकी अवस्था यानी उनकी खुशी के लिए उनको संरक्षित करने की जरूरत है, उनके लिए, ना कि अपने लिए। जिस तरीके से हम अपने हित की बात सोचते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति के हित की बात की जा रही है, और इस तरीके का जो संदर्भ है हमारे प्राचीन साहित्य में मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रेम एवं स्नेह का व्यवहारिक संदेश भी वेदों में दृष्टिगत होता है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अहिंसा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सहयोग करती है। मनुष्य को प्रेम पूर्वक प्रकृति के साथ सुख कल्याण का विचार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करना चाहिए, तभी मनुष्य अपनी भौतिकवादी प्रवृत्ति को नियंत्रित कर पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रख सकता है। और अंततः पर्यावरण और मानव मूल्य के संदर्भ में यह उदाहरण चिंतनीय है, अर्थात जो समस्त जीवों को धारण करता हो, जिसके बिना जगत का अस्तित्व ही संभव न हो, जिससे सब कुछ संयमित, सुव्यवस्थित, सुसंचालित हो, वही धर्म है। यह धर्म की प्रवृत्ति मानव में ही निहित है, यही धर्म मानव में मूल्य रूप में विद्यमान होते हैं। अतः यह निश्चित है कि मानव सभ्यता का विकास मानव चिंतन पर निर्भर करता है। मानव चिंतन का प्रवाह जिस दिशा में होगा, विकास की दिशा भी वही होगी। सर्वविदित है कि वर्तमान समय में मानव चिंतन और विकास की धारा विनाश की ओर हो गई है, और विगत 100 वर्षों में मानव मात्र स्व कल्याण की भावना से संपूर्ण पर्यावरण पर घातक प्रहार करता चला आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मानव मूल्य ही इस पर्यावरण की सुरक्षा कर सकता है, और मूल्यगत आचरण से ही मानव अपने अभ्यंतर दुर्गुणों, अतिभोग, स्वार्थ, लिप्सा, लोभ, मोह आदि से मुक्ति पाकर पर्यावरण के साथ सुखी एवं संपन्न जीवन बिता सकता है। और इस चीज के लिए, इन सब आयामों पर सोचने के लिए जो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है हमारा साहित्य, हमारा प्राचीन साहित्य, जिसमें कि इस प्रकार के संदर्भ हम लोगों को मिलते हैं। तो आज भी यदि हम हिंदुइज्म के अंतर्गत पर्यावरण को देखें, तो हमें उन तमाम समस्याओं का समाधान मिल जाएगा जिसको हम आज फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much, ma'am, Professor Anuradha Singh, for this highly enlightening and surveying paper, which has covered almost every aspect of Hindu history, Hindu culture, from the point of view of environmentalism. And with this, we come to the end of this conference. I would like to thank everyone who has contributed to the success of this conference. It begins with our founder, Sri Harikiran Vadlamani ji, who conceived this topic of this conference.
Originally, we conducted a conference on indigenous environmentalism, including folk culture, Buddhism, and Jainism. But then we thought we should focus more on Hinduism specifically, and then this conference was conceived to focus more on Hinduism aspects from a broader perspective of the earlier conference. And in a series of conferences on Hinduism and aesthetics, Hinduism, art, architecture, and artisans, Hindu meditation practices, and several other such topics. And there are more in pipeline. In future, we are going to have a conference on femininity in Hinduism. It is going to be conducted physically in Kamakhya temple in Assam, and we are going to have conferences on various other topics like Hindu ideas of law, justice, and ethics, and Hindu knowledge systems, and so on and so forth. So, as part of these various topic coverage, we have chosen this topic, and all these topics emerge from the creative thinking of our founder, Sri Harikiran Vadlamani ji, and Professor Rana P.B. Singh of Varanasi, who worked on Varanasi's geography and environment. He's a geography person with a lot of work contributed on environment. And while contacting Professor P.V. Singh, I came across Professor Anuradha Singh. And it is in that connection that we got this very good introduction to Professor Anuradha Singh. And it was very good that we got connected to her and got this wonderful talk by her. And in the inaugural session of this conference, we had a wonderful scholar and official working in the environment area, Dr. Prasanna Kumarji, Dr. W.G. Prasanna Kumar, who is the chairman of Mahatma Gandhi National Council for Rural Education. We are grateful to Dr. W.G. Prasanna Kumarji for having accepted to. And we are thankful to each and every paper presenter of this conference who have presented their papers in all the different sessions, covering from the epics, cultural areas, festivals, and temple, particularly Agama Shastra this morning, and Vedas and yoga, and all these aspects this afternoon. And we have covered several different aspects very crucial for Hinduism. And to each and every paper presenter, I express my indebtedness. I express my thankfulness particularly to the audience who have been present throughout this conference with the utmost attention, and have expressed their views, have participated in questions and answers, and are taking the ideas of this conference forward in so many different ways among themselves. And I thank all the people, our Amit Vikramji, who has helped us in publicizing the conference, and our publicity team, our social media team, our graphic design poster team, and all others who have worked on behind the screens for this conference. This conference or any other of our conferences would not be possible without the work of our officers, Sri Srinivas Garu and Sri Koti Garu. These two work day and night behind the screens for the success of this conference. For all the conferences for that matter. If, for example, your direct video streaming is happening on Indic Academy YouTube channel or Facebook, it is all because of the hard work of Sri Koti Garu, and it is the day and night toiling by Sri Srinivas Garu that you have seen how
He has been with you. He has been working with all of you in the WhatsApp group and everything that is behind this conference. The credit goes to Sri Srinivas Garu. I thank him profusely for all the contribution that he has been doing officially, administratively for the success of this conference. And I thank Professor Anuradha Singh for giving the valedictory address. I thank Thank you so much, sir. everyone who has contributed for the success of this conference. Let us keep meeting in further conferences. The WhatsApp group that was created for this conference will be active in future, and you will be notified further developments of the publication of your papers during the next few days. And let us close this sacred conference with a sacred chanting. Om तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः